ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یا اللہ آج بچا لے، آئندہ نہیں کروں گی۔ یوسف لغاری کی الماری میں چھپتی شاہنزا نے خوف سے کہا۔ یوسف لغاری اس کا تایا زاد کزن تھا جو اس سے 8 سال بڑا اور بہت غسیلا تھا۔ شاہنزا کا پاسپورٹ اس کے پاس تھا جسے ڈھونڈنے وہ یوسف کے کمرے میں آئی تھی، پر اچانک یوسف کے آ جانے سے الماری میں چھپ گئی۔ ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے جب یوسف نے الماری کا دروازہ کھولا اور سامنے شاہنزا کو دیکھتے اس کا دماغ گھوم گیا۔ بددماغ لڑکی، تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ اچھا، تم یہاں پاسپورٹ ڈھونڈنے آئی تھی تاکہ بھاگ سکو؟ یوسف اچانک چونکا، پھر گہرا مسکرایا۔ بے فکر رہو، آج پکا انتظام کروں گا کہ پاسپورٹ مل بھی جائے تو تم بھاگ نہ سکو۔ ممتاز صاحب کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال تھا، کیونکہ اپنی ننھی شہزادی کی ناراضگی سے وہ کافی پریشان تھے۔ اگر ان کی خاصی مجبوری نہ ہوتی تو کبھی بھی لوٹ کر واپس پاکستان جانے کی حماقت نہ کرتے۔ چند سال قبل اپنی مرضی کی شادی کرنے پر شمشاد بیگم نے انہیں اپنے رشتے سے آگ کر دیا تھا۔ جب بھی انہوں نے اپنی والدہ سے رشتہ بنانے کی کوشش کی تو وہ یہی کہتی کہ جب تک تم اپنی گوری بیوی کو طلاق نہیں دو گے تب تک ہمارے درمیان معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، ہماری نسل گوری سے نہیں چلے گی۔ ممتاز صاحب اپنی من پسند بیوی کو کس کے سہارے چھوڑتے، جنہوں نے اسلام قبول کر کے دین کے راستے پر چلنا شروع کر دیا تھا۔ ممتاز صاحب یہ بھی جانتے تھے کہ ماں کی دعاؤں کے بغیر ان کی زندگی اچھی نہیں گزر سکتی، لیکن پہلی بیوی پر سوتن کا ظلم بھی وہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ 2 بیویوں میں عدل کرنا انہیں مشکل لگ رہا تھا۔ شاہنزا کی پیدائش پر جب ان کی پیاری بیوی چل بسی تو انہوں نے بھی واپسی کا راستہ بند کر دیا اور سب سے اپنا تعلق خود ہی ختم کر دیا۔ ان کے دل میں بھی اپنوں کے خلاف کافی بدگمانیاں پیدا ہو گئی تھیں، اور اپنی مری ہوئی بیوی کے بعد وہ کسی بھی اور عورت سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اپنی زندگی کا سارا حصہ شاہنزے کی پرورش میں لگا دیا۔ شاہنزے شروع سے ہی بن ماں کی بچی تھی، تبھی اسے کسی کی روک ٹوک کی عادت نہیں تھی۔ باپ نے ہمیشہ لاڈ پیار میں رکھا، آج تک زندگی میں کوئی بھی کام اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے فیصلوں میں ڈھیٹ اور ہٹ دھرم ہو گئی۔ پاکستان جانے کا جب بتایا گیا تو وہ کافی ناراض ہوئی تھی۔ اسے بالکل بھی اس ملک واپس نہیں جانا تھا جہاں اس کی والدہ کو اپنایا تک نہ گیا، لیکن زندگی میں پہلی بار ممتاز بیگم نے اسے ایموشنل بلیک میل کر کے اس فیصلے کے لیے منا ہی لیا۔ تمہارے منہ پر 12 کیوں بچے ہوئے ہیں بچے؟ ان کے سوال پر وہ منہ موڑ کر سنجیدگی سے باہر دیکھنے لگی۔ اب اپنے بابا سے اتنا ناراض ہو گئی ہو کہ جواب نہیں دوگی؟ آپ سے ناراض ہونے کا مجھے پورا حق حاصل ہے، کیونکہ آپ ہی میرے لیے سب کچھ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ میں پاکستان واپس نہیں جانا چاہتی، جہاں میری والدہ کو نہ اپنایا گیا ہو۔ وہاں لوگ مجھے کیسے قبول کریں گے؟ اور ویسے بھی مجھے پاکستان بالکل پسند نہیں، وہاں کے لوگ بھی عجیب مطلبی اور مفاد پرست ہیں۔ میری رگوں میں دوڑنے والا خون بھی اسی گوری کا ہے۔ اب نس کاٹ کر اس فرق کو کیسے مٹائیں گے؟ میرے اندر کا خون نچوڑ کر اپنا گندا خون تو نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی انہوں نے آہستہ سے بیٹی کا سر اپنے کاندھے پر رکھا۔ کچھ ماضی کے داغ بچوں سے بچا کر ہی رکھنے چاہیے، ورنہ ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس چیز کا پچھتاوا ممتاز صاحب کو اب ہو رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ کبھی بھی میں آپ کے فیصلے کے خلاف نہیں گیا، آج تک اپنی والدہ سے ملا بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے بھی تو ان کی یاد آتی ہوگی۔ کیا آپ میری خاطر کچھ دن پاکستان میں نہیں گزار سکتی؟ اس کا منہ اب بھی پھولا ہوا تھا۔ ممتاز صاحب نے پاکستان کے ٹکٹ بک کروا لیے تھے اور بغیر اس سے پوچھے سارا سامان بھی پیک کر دیا تھا۔ آپ مت بھولیں
آپ کے ایموشنل بلیک میلنگ کی خاطر ہی میں جا رہی ہوں، لیکن وہاں جا کر میں کسی سے کوئی فضول کی بات نہیں کروں گی۔ آپ ان سب کو سمجھا دیجیے گا کہ مجھ سے زیادہ اٹیچ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شانزے کو پاکستان کے بارے میں ہمیشہ غلط ہی سننے کو ملا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہاں کے لوگ کافی تنگ نظر اور چھوٹی ذہنیت کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ وہاں جا کر کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرو گی تو وہ لوگ سمجھیں گے کہ میں نے آپ کی تربیت اچھی نہیں کی۔ وہ اسے حقیقت بتا کر خود سے بدظن نہیں کرنا چاہتے تھے اور جانتے تھے کہ وہاں جا کر وہ ہنگامہ ضرور کرے گی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی بیٹی کو سمجھا لیں گے۔ وہ اس بارے میں کچھ بھی سمجھے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس کے سرٹیفکیٹ دینے سے میں جنت میں نہیں چلی جاؤں گی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اپنے باپ سے اتنی بدتمیزی نہیں کی تھی، لیکن پاکستان نہ جانے کی ضد میں وہ کافی زبان دراز ہو چکی تھی۔ تمہاری باتوں نے میرا دل بہت دکھایا ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم بہت نرم دل کی ہو۔ شاید میری ناراضگی نے تمہارے دل میں ان لوگوں کے خلاف بہت نفرت بھر دی ہے۔ وہ اتنے برے لوگ نہیں ہیں، ہاں کچھ جذباتی ہیں لیکن برے نہیں ہیں۔ میری باتوں نے آپ کا دل دکھایا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ میں اتنی سخت دل کی نہیں ہوں۔ آج تک جن لوگوں کو میرا خیال تک نہ آیا، میرے ہونے نہ ہونے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اچانک سے وہاں چلے جانا میرے لیے ناقابل یقین ہے۔ جیسے تیسے کر کے وہ اپنی بیٹی کو پاکستان جانے پر راضی کر گئے تھے۔ گھر میں صرف یوسف کو معلوم تھا کہ وہ لوگ واپس آ رہے ہیں۔ یوسف نے حویلی کے نوکروں کو آج خاص اہتمام کا کہا اور گھر میں سب کو یہی بتایا کہ اس کے کچھ خاص دوست ملنے کو آ رہے ہیں۔ آج سے وہ پہلے اپنے کسی دوست کو حویلی کے اندر نہیں لایا تھا، لیکن ایسا کون سا خاص دوست پیدا ہو گیا؟ اس بات کا سبھی کو تجسس تھا کہ وہ خاص دوست کون ہے۔ پتر نوکر چاکر تو اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، صبح سے اپنی ماں کو بھی کام پر لگا رکھا ہے۔ ایسا کون سا دوست تیرا گھر میں آ رہا ہے؟ دادی اماں، میرا دوست باہر کے ملک میں رہتا تھا، لیکن بہت عرصے بعد میرا دل اسے گھر میں دعوت دینے کو ہوا۔ دادی نے ہاں میں سر ہلایا۔ اپنے پوتے پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ کسی ایسے ایرے غیرے کو اندر نہیں آنے دے گا، کیونکہ حویلی میں کام کرتی عورتیں اور گھر کی بچیاں بھی تو یہی رہتی ہیں۔ یوسف سچ بتا کر اپنے چچا کا سرپرائز خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یوسف دراصل گھر میں سبھی بچوں میں سب سے بڑا تھا، جس کی وجہ سے کاروبار کی باغ دوڑ اسی کے ہاتھ میں تھی۔ گھر کے سبھی چھوٹوں پر فرض تھا کہ وہ اس کا کہنا مانے۔ یوسف انہیں خود اپنی گاڑی میں لینے ایئرپورٹ پہنچا۔ چچا کا رویہ تو کافی اچھا تھا۔ انہوں نے اپنے بھتیجے کے بغل گیر ہو کر کافی اچھے سے استقبال کا جواب دیا، جبکہ نک چڑی کزن نے منہ لگانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ بابا، یہاں کی آب و ہوا کتنی گندی ہے، اور کیا یہاں کے لوگوں کو اپنی صفائی ستھرائی کا کوئی خیال نہیں؟ روڈ پر کیسے گند پھینک رکھا ہے۔ بیٹا، کسی بھی ملک کا نظام تب تک ٹھیک رہتا ہے جب تک اس کی رعایا بھی اس میں برابر کا حصہ ڈالے، اپنے آپ کی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ لیکن آپ کو ملک کے دوسری طرف بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں کے لوگ زیادہ ملنسار اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ ان باپ بیٹی کی لڑائی میں وہ خاموش ہی رہا تھا۔ آخر وہ وقت آ ہی گیا جس مہمان کا سب لوگ انتظار کر رہے تھے۔ یوسف کو اپنی کزن کے تیور کچھ خاص اچھے نہیں لگ رہے تھے، یوں جیسے اسے زبردستی یہاں لایا گیا ہو۔ میرا بیٹا، دادی اپنے ناراض بیٹے کو اپنے سامنے اتنے سالوں بعد کھڑا دیکھ کر کافی جذباتی ہو گئیں۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر سینے سے لگا رہی تھی، اپنی تڑپتی ہوئی ممتا کو سکون دینا چاہ رہی تھی۔ میری پوتی اتنی دور کیوں کھڑی ہے؟ یہ تمہاری بیٹی ہے نا؟ ممتاز صاحب اپنی ماں سے مل کر کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے اور بیٹی کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی دادی سے ملے۔ مہربانی، یہاں پر کوئی بھی مجھ سے پیار نہ کرے، کیونکہ میں یہاں پر صرف چند دن کی مہمان ہوں اور جلد ہی واپس چلی جاؤں گی۔ میری رگوں میں اب بھی اس گوری خاتون کا ہی خون دوڑ رہا ہے۔ وہ بغیر اپنی دادی کی جانب دیکھے انہیں اچھے سے یاد دلا چکی تھی
کہ ماضی میں اپنی ضد کی وجہ سے وہ کتنا رشتہ خراب کر چکی ہیں۔ میں اپنے ماضی کے فعل پر شرمندہ ہوں۔ تمہاری ماں نے جانے میں بہت جلدی کر دی، ورنہ میں ان سے ضرور معافی مانگتی، لیکن میرے بچے، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ باقی سب حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ اس گھر میں ممتاز صاحب کے علاوہ 2 بڑے بھائی بھی رہتے تھے جن کی آگے سے اولادیں تھیں۔ وہ سب اچانک سے اپنے چچا سے مل رہے تھے۔ شہباز صاحب کی شادی شمشاد بیگم نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ ان کی 2 اولادیں تھیں، یوسف اور صبا۔ رحمان صاحب گھر میں سب سے لاڈلے ہونے کے سبب اپنی لو میرج کو ارینج کرنے میں کامیاب ٹھہرے تھے، اور بڑے تحمل مزاجی سے انہوں نے اپنی بیگم سے پسند کی شادی کی۔ ان کی بھی 2 ہی اولادیں تھیں، ذیشان اور کامران۔ ممتاز صاحب کا ممری میں ہی اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے باہر کے ممالک میں چلے گئے، اور وہاں انہیں شانزہ کی والدہ پسند آ گئی، اور پھر حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہیں کے رہ گئے تھے۔ میری والدہ اس خواہش کو لے کر یہاں سے چلی گئیں کہ کبھی انہیں آپ کا پیار ملے گا، لیکن آپ نے اپنی انا کا سر فخر سے بلند رکھا۔ اسی طرح اب آپ کی معافی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ممتاز صاحب نے اپنی بیٹی کو گھورا۔ بیٹا، بڑوں کا ایسے دل نہیں دکھاتے۔ رحمان صاحب نے بھتیجی کو سمجھایا، لیکن وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ خاموش سی کھڑی رہی اور باقی سب تو حیرانی سے منہ کھولے کھڑے تھے۔ جب سب کو ہوش آیا تو باری باری سبھی شانزے کو پیار کرنے لگے، لیکن اس نے کسی کی محبت کا پرجوش اظہار نہیں کیا۔ دادی اپنے کمرے میں جانے کو تیار تھیں، کیونکہ پوتی کے اس رویے کے بعد ان کا دل کافی دکھا تھا۔ آج پھر وہ اپنے ماضی کے غموں کے ساتھ چند پل رونا چاہتی تھیں۔ باقی سب لوگ بھی ممتاز صاحب کے ساتھ ملنے لگے تھے۔ بھائیوں نے اپنے شکوے دور کر دیے۔ صبا اپنے ساتھ اسے کمرے میں لے کر گئی۔ شاید نئے مہمان کی آمد سے پہلے ہی ایک کمرہ سجا کر رکھا گیا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ صبا کی دھیمی مسکراہٹ پر وہ کچھ سخت نہ بول سکی۔ آپ میرا کھانا میرے کمرے میں ہی پہنچا دیں، کیونکہ مجھے باہر زیادہ لوگوں میں بیٹھ کر کھانے کی عادت نہیں۔ صبا سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی۔ آج سے پہلے وہ اپنی اس کزن سے نہیں ملی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی دیکھ کر وہ مسمرائی ضرور ہوئی تھی۔ شانزے نے گہرا سانس بھرا اور نہ جانے اسے کتنے دن اس گھر میں رکنا پڑے گا۔ سب لوگ اس تجسس میں تھے کہ وہ دونوں آخر اتنے عرصے بعد پاکستان کیوں آئے ہیں۔ کمرے میں کھانا آیا تو وہ کھانے لگی۔ ممتاز صاحب قدرے پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ نہ جانے ایسا کیا تھا جو انہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ اتنے عرصے سے ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، اور اب مل بیٹھنے سے یوں لگا جیسے پرانے فاصلے مٹ گئے ہوں۔ ممتاز، ایسی کیا بات ہے جو تمہیں آرام نہیں کرنے دے رہی؟ اور اگر تم شانزے بچی کے لیے پریشان ہو تو آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ انہیں یہی سمجھ آیا کہ اچانک آنے پر پریشان ہے۔ بھائی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ اپنی ماں کی ڈائری پڑھنے کے بعد وہ بس نفرت کی آگ میں جلتی رہی، اور میں نے بھی اسے اپنوں سے ملوانے میں کافی دیر کر دی۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دکھ اچھے سے سمجھ سکتا تھا، کیونکہ جب سے وہ آئے تھے شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ہمارے رویوں کو دیکھ کر اس کے نظریے میں ضرور خاطر خواہ کمی آئے گی، اور ویسے بھی میں نے ابھی ذیشان کو اس سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ تم فکر مت کرو، باقی سب سے بھی گھل مل جائے گی۔ بھائی، میں کسی اور وجہ سے بھی پریشان ہوں۔ جب اسے پتا چلے گا کہ میں واپس باہر کے ملک نہیں جانا چاہتا اور اپنا سارا بزنس پاکستان میں سیٹل کر رہا ہوں، تو وہ بہت ناراض ہوگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہارے اس طرح اچانک آنے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تم بچی کو اعتماد میں لے کر بھی پاکستان واپس آ سکتے تھے، اور پہلے اس کا اعتماد ہم پر بحال کروا دیتے، بعد میں یہ فیصلہ لیتے۔ بھائی کی یہ بات سن کر وہ سر اٹھا کر اوپر دیکھنے لگے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرے پاس وقت زیادہ ہے تو میں شاید آپ کی بات پر عمل بھی کر لیتا، لیکن ڈاکٹر کی رپورٹس کے مطابق میں زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ میرا برین ٹیومر تیزی سے بڑھ رہا ہے اور لاسٹ سٹیج پر علاج بھی ممکن نہیں۔
रहमान साहब परेशान हाल अपने भाई को देखने लगे कि शायद उसका खुशियों पर हक नहीं था। अल्लाह ने उन्हें खुशियों की बहुत कम मोहलत दी थी। अपनों से मिलने के बाद वक्त ही छीन लिया। माँ तो अपने बेटे से अभी अच्छी तरह मिली भी नहीं थी कि बिछड़ने की खबर सुना दी। तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम यहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। यूसुफ की बहुत से जानने वाले हैं, तुम फिक्र मत करो और हिम्मत मत हारो। भाई को उठकर गले लगाते दिलासा देने लगे। भाई साहब, मैंने हर जगह से इलाज करवाने की कोशिश की है, लेकिन डॉक्टर ने यही बताया है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि शानज़े आप लोगों में घुल मिल जाए, ताकि मेरे जाने के बाद उसे कोई संभालने वाला तो हो। तुम बेफिक्र रहो, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। रहमान ने भाई को दिलासा दिया। ये बात उन तीनों भाइयों के दरमियान ही थी। वो किसी को बताकर शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। शानज़े वैसे तो कम ही कमरे से बाहर निकलती थी, लेकिन इस दौरान उसे ये मालूम जरूर पड़ गया था कि सबा का बचपन से ज़ीशान से रिश्ता तय है। वो उसे बहुत स्वीट लड़की लगी थी, जबकि यूसुफ के रिश्ते के लिए ताई जान लड़की की तलाश कर रही थी। थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन वो सबा और ज़ीशान से बातें कर लिया करती थी। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान भाई। सब लोग तो उसके रवैये को समझने के बजाय उस पर बदतमीजी का टैग लगा चुके थे, लेकिन ज़ीशान भाई ने उसका साथ नॉर्मल रवैया रखा। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, कैसे गुजर रहे हैं तुम्हारे पाकिस्तान में शबो रोज? ज़ीशान शुरू से अपने घर वालों से दूर हॉस्टल में पला बड़ा था। अब उसे लगता था कि किसी को जबरदस्ती गलत माहौल में आप नहीं रख सकते। वो शानज़े के रवैये को खूब समझता था। आपको लगता है कि घर वाले मेरी बातों को इतनी आसानी से समझ जाएंगे? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये मामला इतनी आसानी से सुलझ जाएगा। कुछ दिन दादी की तबीयत जरूर खराब रहेगी, लेकिन उन्हें यही समझना चाहिए कि तुम्हें भी वक्त दरकार है। ज़ीशान ने उसकी हिमायत में वोट डाला तो घर के बाकी बच्चे चोरी चोरी उस गोरी चमड़ी वाली नकचड़ी कजन को देखने लगे। यूसुफ जो मोबाइल पर मसरूफ था, आवाज पर चौंक कर सर उठाकर उस लड़की को देखने लगा जो कल ही उनके घर नाजिल हुई थी, और उसके आते साथ घर में लड़ाइयां होना शुरू हो गई थी और दादी की तबीयत खराब हो चुकी थी। आपके अलावा यहां कोई इतना समझदार नहीं कि इस बात को समझ सके। मैं तो पहले यहां आने के हक में नहीं थी। अगर बाबा ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल ना किया होता तो मैं कभी भी वापस पाकिस्तान ना आती। बाकी सबने ज़ीशान को घूर कर देखा कि वो इस उल्टी खोपड़ी वाली लड़की की हिमायत में क्यों लगा हुआ है, लेकिन ज़ीशान ने किसी की नजरों का खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। तुम अभी तक घर में हो? मुझे लगा गेस्ट रूम की खिड़की से खामोशी से फरार हो जाओगी। बाकी सब भी हंस दिए थे। बाबा के बगैर भला मैं किधर जा सकती हूं? हमें खुद नहीं मालूम कि इतने अरसे बाद चचा को आखिर हमारी याद कैसे आ गई। दादी और उनके दरमियान जो भी तनाज़ात थे वो उनके दरमियान रहने चाहिए थे। हम कज़न का इन सब में क्या कसूर है? यूसुफ को उनके आने से खास फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उस लड़की से खास कोफ्त महसूस होती थी। मोहतरमा, अगर आप अपने बाप के कहने पर यहाँ आ गई हैं तो यहाँ के लोगों का एहतराम करना सीखें। दादी के सामने खड़े होकर दादी से बदतमीजी करना आपके आला ज़र्फ होने की गवाही देता है। मेरे आला ज़र्फ होने या कम ज़र्फ होने का सर्टिफिकेट देने वाले आप कौन होते हैं? उसका हंसता खेलता चेहरा यकदम मुरझा गया था। हवाखोरी करने को वो ज़ीशान के करीब आकर बैठी थी, लेकिन अपने मूड का जनाजा निकलता देखकर तेजी से उठकर वहां से चल दी। अल्लाह करे इसे पकोड़े के नाक वाली लड़की मिले। वो दिल ही दिल में बद्दुआ दे उठी थी। यूसुफ, तुम्हें क्या जरूरत थी बच्ची को ऐसे डांटने की? वो इतने अरसे बाद पाकिस्तान आई है, और अगर उसके दिल में कोई खलिश है भी तो बातों से सुलझाई जा सकती है। ये बच्ची हर वक्त हम सब के जहनों पर सवार रहती है, और हम सब सिर्फ इसी वजह से इसे नहीं डांटते कि ये पराए देश से आई है। उस कमरे से निकलकर वो सीधा अपने बाबा के कमरे में गई थी, जो किसी किताब का मुताला करने में मसरूफ थे। जब से वो यहाँ आई थे
काफी कमजोर और थके थके लग रहे थे, लेकिन अपने लड़ाई झगड़े में वो उनसे ज्यादा बात ही ना कर सकी। आज मेरी बेटी को बाप की याद कैसे आ गई? अपनी फूल सी बच्ची का सूजा हुआ मुंह देखकर वो धीमे से मुस्कुरा दिए। पराए देश में वो किसके भरोसे इस बच्ची को छोड़कर जाते? वो हमेशा जज्बाती और जल्द फैसला लेने वालों में से थी, इसलिए उन्हें फिक्र थी कि यहाँ उनके जाने के बाद उनकी बच्ची का क्या होगा। वो यहाँ के लोगों को अपना मानने को तैयार नहीं थी। बाबा, आपको मालूम है यहाँ एडजस्ट होने में कितना मसला हो रहा है। आप ठीक है ना? वो फिक्रमंदी से उनके चेहरे को टटोलने लगी। भला मेरी बेटी के होते हुए मुझे क्या हो सकता है? बाबा, फिर आप बताएं ना कि हम वापस कब जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोगों से आपने अच्छे से मिल लिया होगा। वहां मेरी यूनिवर्सिटी भी शुरू होने वाली है। अगर मैं कहूं कि मैं वापस उस मुल्क नहीं जाना चाहता, तो क्या आप मेरे इस फैसले में मेरे साथ खड़ी रहेंगी? शांजा ने अपना हाथ पीछे खिसका लिया और हैरत से अपने बाप को देखने लगी। यकीनन वो इस वक्त कोई मजाक तो नहीं कर रहे होंगे। बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने आने से पहले मुझसे वादा लिया था कि हम यहाँ मुस्तकिल नहीं रहेंगे, और अब आप कह रहे हैं कि हम वापस नहीं जा रहे। मेरे ख्वाब बहुत से उस जगह से जुड़े हैं। आपकी माँ ने आपको अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है। वो आपको मुझसे दूर कर देना चाहती हैं। वो तेजी से वहां से उठकर बाहर निकल गई। मुमताज साहब दोबारा से किताब का मुताला करने लगे, लेकिन दिमाग में यही फिक्र थी कि अगर उनकी मौत के बाद वो वापस पराए देश चली गई तो अकेली कैसे गुजारा करेगी। अब उसे समझ आया कि यहाँ आने से पहले उसका पासपोर्ट और बाकी कागजात उससे क्यों लिए गए थे। ये सब सोची समझी साजिश थी। उसने आज तक सिर्फ दूसरों के मुंह से सुना था कि पाकिस्तान के लोग अपने जाल में फंसा लेते हैं। चाय का कप लेकर अपने कमरे की बालकनी में आ चुकी थी और दिमाग में यहां से भागने के मंसूबे बना रही थी। अगर उसे अपना पासपोर्ट मिल जाता तो आसानी से वापस जा सकती थी, और बाबा ने तो उसे किसी मौके पर माफ कर ही देना था। मेरी बहन क्या अब तक नाराज है? किसकी बात पर मुंह फूला हुआ है? जीशान का कमरा उसके बिल्कुल साथ था। अक्सर बालकनी में वो इस कम उम्र लड़की को सोचों में जकड़ा हुआ देखता था। शांजे को एहसास हुआ कि यूसुफ और दादी को छोड़कर यहां कोई भी इतना बुरा इंसान नहीं है। सिर्फ दो लोग हैं जो अपनी जबान से दूसरों को जख्मी करना जानते हैं। भाई, कुछ नहीं, बस बाबा कह रहे हैं कि हम वापस नहीं जाएंगे। उसकी उदासी का असल मफहूम अब समझ में आया। जैसे बर्फानी रेज गर्म इलाके में नहीं रह सकता, वैसे वो भी यहां की आदी नहीं थी। लोग कहीं के भी बुरे नहीं होते, बस उनका रहन सहन और सोच में फर्क होता है, और यही आदतें हमें तंग करती हैं। मैं मानता हूं कि अचानक से तुम्हारा यहां रहना बहुत मुश्किल है, और तब जब तुम हमसे बदगुमान हो चुकी हो। लेकिन अगर सोचो तो यहां तुम्हें मेरी सूरत एक खूबसूरत भाई मिल रहा है, और चंद दिनों बाद भाभी भी मिल जाएगी। उसकी बात को मजाक समझते वो धीमे से मुस्कुरा दी। मेरी वहां एक जिंदगी है जिसको स्टॉप लग चुका है। आप सबकी जिंदगी को अपनी रफ्तार से चल रही है। मेरे अपने दोस्त हैं जिनके साथ खुलकर मैं बात कर सकती हूं, जो मुझे अच्छे से समझते हैं, और यहां सिर्फ एक घुटन है जो मुझे अपने गिर्द महसूस होती है। मेरे लिए इस जगह से बदसूरत जगह और कोई नहीं होगी, क्योंकि यहां मुझे ऐसा लगता है मेरे पर काट कर मुझे पिंजरे में कैद कर दिया गया हो। मैं तुम्हारी हर चीज को समझता हूं। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि तुम एक बार यहां से चली जाओ और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो। क्या आप वाकई मेरी मदद करेंगे? उसकी आंखें चमक उठी। अगर तुम्हें बहन बोला है तो मदद तो करनी पड़ेगी, और एक भाई का फर्ज बनता है कि बहन के ठीक होने पर उसका साथ दे। वैसे भी जैसी खबरें वो उसके और यूसुफ के बारे में गर्दिश कर रही थी, अगर अल्लाह ने मुझे कोई भाई सगा भी दिया होता तो आप जैसा ही होता। वो धीमे से मुस्कुरा दी। अब मक्खन बाद में लगा लेना,
अभी पासपोर्ट तो चोरी करो। और वो इस वक्त यूसुफ की कस्टडी में है। लेकिन ये पासपोर्ट उनकी कस्टडी में क्या कर रहा है? मुझे लगा कि पासपोर्ट बाबा के पास होगा। अब तो वसूल करना नामुमकिन है। वो पहले गुस्से से और फिर अफसोस से माथे पर हाथ रखकर बैठ गई। चचा ने ही शायद उन्हें किसी काम के सिलसिले में दिया होगा, और ये सारा काम मेरे सामने हुआ था, इसलिए मैं जानता हूं कि उनकी अलमारी में पासपोर्ट पड़ा है। अभी इतना वक्त भी नहीं हुआ, वो दफ्तर में ही होगा। तुम जाकर वहां से निकाल लाओ, मैं बाहर नजर रखता हूं। वो सर हिलाकर उसके पीछे चल पड़ी। दोनों धीमे धीमे चलते यूसुफ के कमरे के बाहर खड़े हो गए थे। कमरा बहुत जदीद तर्ज पर सजा हुआ था। शायद यूसुफ ने अभी अपने कमरे को अपडेट किया था। कमरे की बनी अलमारियों को खोलते साथ उसे शर्मिंदगी सी भी हुई कि अगर पकड़ी गई तो सबको क्या मुंह दिखाएगी। ज़ीशान भाई सीढ़ियों पर बैठा नजर रख रहा था, लेकिन अचानक बिजनेस कॉल आ जाने पर वो वहां से उठकर एक तरफ को हो गया। यूसुफ अपने काम के मुताबिक सीधा अपने कमरे में दाखिल हुआ था। या अल्लाह, आज बचा ले, आइंदा नहीं करूंगी। यूसुफ लगारी की अलमारी में छुपते शाहजहां ने खौफ से कहा। खुद को दिल में कोसा कि पासपोर्ट मिलते साथ ही इस मुसीबत ने आना था। अगर और लोगों को भी पता चल गया तो वो समझेंगे कि मैं बगैर इजाजत के इस लड़के के कमरे में क्या कर रही थी। हाथ उठाकर दुआएं मांगने लगी कि अल्लाह बस आज उसकी इज्जत रख ले। यूसुफ लगारी उसका ताया जात कजन था, जो उससे 8 साल बड़ा और बहुत गौसीला था। आज तक शांजी को नहीं याद कि उन दोनों के दरमियान कोई अच्छी बातचीत हुई होगी। दिल ही दिल में वो तो उसे अपनी दादी का चमचा बोलती थी। शांजे का पासपोर्ट उसके पास था, जिसे ढूंढने वो यूसुफ के कमरे में आई थी, पर अचानक यूसुफ के आ जाने से अलमारी में छुप गई। अभी कुछ लम्हे ही गुजरे थे। यूसुफ जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ, उसे अजीब सी हलचल महसूस हुई। कोई लेडीज परफ्यूम की महक भी सूंघने पर महसूस हुई। जब यूसुफ ने अलमारी का दरवाजा खोला और सामने शांजे को देखते उसका दिमाग घूम गया। ये लड़की आज उसके कमरे में क्या कर रही है? कहीं किसी मंसूबे के तहत तो नहीं आई? ज़ीशान तो जैसे गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गया। उसने ही यहां आने का मशवरा दिया था और उसे मुसीबत में छोड़कर खुद भाग गया। बददिमाग लड़की, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि? अच्छा, तो तुम यहां पासपोर्ट ढूंढने आई हो ताकि भाग सको? यूसुफ अचानक चौंका, फिर गहरा मुस्कुराया। वो शांजे के हाथ में छुपा पासपोर्ट देख चुका था। बाप यहां से जाने को तैयार नहीं था और बेटी किसी गैर के कमरे में चुपके से पासपोर्ट चोरी करने आई थी। बेफिक्र रहो, आज पक्का इंतजाम करूंगा कि पासपोर्ट मिल भी जाए तो तुम भाग ना सको। वो उसे हाथ से पकड़कर खींचते हुए बाहर को ले जा रहा था, जबकि शांजे मुसलसल जद्दोजहद कर रही थी कि किसी तरह वो अपना हाथ यूसुफ के हाथ से छुड़ा ले। बदतमीज इंसान, मेरा हाथ छोड़ दो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? मैं सिर्फ पासपोर्ट लेने आई थी। घर के सभी लोग बातें सुनकर निकल आए थे। ज़ीशान को अफसोस हुआ कि वो अपनी मीटिंग को सुनने के लिए एक तरफ क्यों चला गया। अगर आज वो बर वक्त वहां खड़ा होता तो शांजे इस मुसीबत में ना पड़ती। चाचू, बेहतर है कि आप अपनी बेटी को मजीद अंधेरे में ना रखें और बता दें कि अब आप यहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरे कमरे से पासपोर्ट चोरी करने आई थी। बेटा, क्या तुम वाकई उसके कमरे में गई थी? मैं तुम्हें वक्त आने पर सब हकीकत बता देना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि यही ठीक वक्त है। यूसुफ ने उसका हाथ छोड़ दिया था। शांजे ने सबके सामने मुश्किल से अपने आंसू रोके। तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, शायद इसके बाद तुम्हारे लिए फैसला करना बहुत आसान हो जाएगा। दरअसल जब मैं बीमार हुआ तो रिपोर्ट्स करवाने पर मालूम हुआ कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। वो झटके से अपने बाप के कदमों में बैठ गई। यूसुफ के लिए भी ये सब कुछ शॉकिंग बात थी। आपने मुझे इतने दिन अंधेरे में रखा और मैं आपको बातें सुनाती रही। एक बार भी आपको मुझ पर तरस नहीं आया
कि आपके जाने के बाद मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। वो उनके गले लगकर सिसक कर रोने लगी थी। आज तक उनके अलावा कोई दूसरा रिश्ता जो नहीं देखा था। मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो, और यहां आने का मकसद सिर्फ ये था कि तुम इन लोगों से अपना ताल्लुक मजबूत बना लो। मेरे जाने के बाद मैं नहीं चाहता कि तुम उस परदेस में रहो। आपके सिवा मुझे किसी से कोई ताल्लुक मजबूत नहीं बनाना, मुझे सिर्फ आप चाहिए हैं। ऐसे बच्चों की तरह बातें मत बनाओ। और तुम्हारी जिद को मैंने बहुत मान लिया। अब तुम्हारे लिए कोई खास फैसला लेना होगा, क्योंकि मुझे समझ आ गई है कि मेरे जाने के बाद तुम एक मिनट भी यहां से जाने में नहीं लगाओगी। चच्चा, हम इन बातों के लिए कोई और वक्त निकाल लेंगे। अभी वो आपकी बीमारी का सुनकर खुद इतने सदमे में चली गई है। ज़ीशान ने मामले को रफा दफा करना चाहा। बाकी सब भी वहां पर आ गए थे और सबको ही हकीकत के बारे में सुनकर अफसोस हुआ था। कहीं ना कहीं इतने दिनों में वो अपने मुमताज चचा का रवैया तो देख चुके थे। बेटा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं रहा और मैं चाहता हूं कि जाने से पहले अपनी बेटी को महफूज हाथों में सौंप जाऊं। जानता हूं ये अभी सिर्फ 18 बरस की है, दुनिया में देखने को अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी मेरे फैसले से इनकार नहीं करेगी। ज़ीशान के कान खड़े हुए और बाकी सब भी सोच में पड़ गए। शमशाद बेगम सर नफी में हिलाते हुए बस यही कहते जा रही थी कि जाने का वक्त तो मेरा था और अल्लाह ने तुम्हें ऐसी बीमारी लगा दी। एक भाई की हैसियत से ये बात मैं बहुत अरसा पहले बोलना चाहता था, लेकिन शांजा बेटी की उम्र का ध्यान रखते हुए मैं तुमसे ये रिश्ता नहीं मांग सका। अब मैं चाहता हूं कि शांजे मेरे यूसुफ की बीवी बने। लेकिन बाबा, जितनी बात पर शांजा के लिए ये शॉकिंग थी, उससे कई ज्यादा यूसुफ हैरान था कि शादी का इतना बड़ा फैसला उसका बाप खुद कैसे ले रहा है। बड़ों ने ये सब बातें बहुत पहले से तय कर ली थी। कहीं ना कहीं वो मुमताज की आंखों को पढ़ रहे थे। हम बड़े आपस में बात कर रहे हैं ना, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। यूसुफ मेरे बेटे की तरह है, लेकिन इन दोनों की उम्रों में बहुत फर्क है। क्या यूसुफ इस रिश्ते से मुतमईन हो पाएगा? शांजे तोड़कर वहां से अपने कमरे में बंद हो गई थी। सबा भी पीछे उसे दलासे देने को जरूर पहुंच गई। शांजे बुरी लड़की नहीं थी और सब कजन्स में सबसे छोटी थी, इसलिए सबा उस खूबसूरत लड़की को अपनी भाभी के रूप में देखकर काफी खुश नजर आ रही थी। जैसे शांजे आपकी बेटी है, वैसे यूसुफ पर भी हमें पूरा भरोसा है। वो कभी भी किसी लड़की को तकलीफ नहीं दे सकता। इस रिश्ते को निभाने के लिए उन दोनों को मुश्किल जरूर पेश आएगी, लेकिन वो निभा लेंगे। शांजे अपने बाप की तबीयत खराबी की वजह से कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। वो इस हकीकत का सामना नहीं करना चाह रही थी कि वो बहुत जल्द उसे छोड़कर जाने वाले हैं। आज तक वो यही समझती आई थी कि बाप का मजबूत सहारा अल्लाह उससे कभी भी नहीं छीनेगा, लेकिन इस दुनिया में जो रिश्ता आया है वो वापस लौट कर जरूर जाएगा। उनकी तबीयत खराबी की वजह से सब घर वालों ने शादी को जल्द रख दिया। घर में शादी की तैयारियां सादगी से की गई थीं। शांजे और यूसुफ के निकाह के साथ ज़ीशान और सबा का निकाह भी रखा गया था। शांजे का ज्यादातर वक्त तो अपने बाप के साथ ही गुजरता था। वो इस रिश्ते से इनकार करना चाहती थी, लेकिन बाप की फिक्र को देखते हुए खामोश हो गई। आपको पता है कि आपका दामाद काफी गुस्से वाला इंसान है। मैं भला उसके साथ सारी जिंदगी कैसे एडजस्ट करूंगी? वो औरत को इज्जत करने वाला इंसान भी है और मुझे अपनी बेटी पर पूरा यकीन है कि वो अपने शौहर की कदर करेगी। आपके बगैर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्या आपके ठीक होने पर यह निकाह नहीं हो सकता? बगैर ब्यूटी पार्लर के तैयार हुए भी वो काफी हसीन लग रही थी। ज़ीशान ने अच्छे भाई का फर्ज निभाते हुए सारी तैयारियों का जिम्मा अपने सर पे लिया था और कई बार वो शांजे से माफी भी मांग चुका था। अपने बाप की तबीयत खराबी की वजह से
वो किसी से लड़ने झगड़ने की हालत में नहीं थी। आपको मालूम है, आप एक बूढ़े इंसान से मेरी शादी कर रहे हैं, जिसके अंदर जिंदगी को जीने की सारी उमंग मर चुकी है। उसकी बात पर सबा का कहकहा गूंजा। मुझे यूसुफ भाई को बताना पड़ेगा कि उनकी होने वाली बेगम को उनसे काफी शिकायत हैं। मेरे भाई संजीदा जरूर है, लेकिन इतनी खूबसूरत बीवी को देखकर बदज़ौक बिल्कुल नहीं रहेंगे। उसकी आखिरी बात पर शानज़े ब्लश करने लगी। मुमताज साहब ज्यादा हिलजुल नहीं सकते थे। सादगी से निकाह की रस्म तय की गई। दोनों जोड़े साथ में बिठा दिए गए थे। घर के कुछ खुसूसी मेहमानों को ही बुलाया गया था। काफी लोग तो इस बात से हैरान हो रहे थे कि इतने अरसे बाद उनका भाई कैसे वापस आ गया, और इतनी जल्दी निकाह की भी क्या थी। यूसुफ और शानज़े की जोड़ी सबसे कमाल की थी। सारी रस्मों के बाद शानज़े को कमरे में बिठा दिया गया। आज के दिन उसके बहुत मिले जुले से जज्बात थे। फिलहाल वो अपने इस रिश्ते को कुछ वक्त देना चाहती थी। यूसुफ के कुछ ज्यादा दोस्त तैयार नहीं थे, इसीलिए ज़ीशान के मुकाबले में वो जल्द ही कमरे में दाखिल हो गया। एक नए वजूद को अपने कमरे में देखकर वो खुद को पुरसकून करने लगा। अब सारी जिंदगी उन्हें साथ ही रहना था। वो चाहता था कि इस रिश्ते को एक नया मौका दे। तुम काफी ज़हनी तौर पर थक चुकी होगी, इसलिए कपड़े बदलकर आराम कर लो। मैं तुम्हें जबरदस्ती कभी भी इस रिश्ते को चलाने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। हम दोनों की रजामंदी से ही ये रिश्ता शुरू होगा। शुक्रिया। पहली बार उसके दिल ने एहसास किया था कि जो रिश्ता उसके बाप ने जोड़ा है वो इतना बुरा भी नहीं। वो शख्स इसको समझ रहा है। यूसुफ उसकी चीजों का काफी ख्याल रखता था। कभी भी अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उसके कांधों पर नहीं डाला था। ये कहा जाए कि शौहर को अक्सर वो भूल ही जाती थी तो ये गलत नहीं होगा। अक्सर अपने बाप की बीमारी में यूसुफ से कई दिन तक बात तक नहीं करती थी। मुमताज साहब शानज़े की शादी के बाद मुतमईन होकर अस्पताल दाखिल हो गए, क्योंकि उनकी सर्जरी का बताया गया था। बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? उसका हाथ थामकर परेशानी से पूछने लगी। उसे अंदाजा ना हुआ जिस रिश्ते को वो कल तक मान नहीं रही थी, आज उसी का सहारा ले रही है। यूसुफ ने धीमे से उसके गिर्द अपना हिसार बांधा और जज्बात में सर हिलाया। वैसे तो डॉक्टर ने कोई मस्बत उम्मीद नहीं दिलाई थी। सबका यही मानना था कि अब लास्ट स्टेज पर ठीक हो पाना मुश्किल है। चाचू को तुम्हारी खातिर जिंदा रहना होगा। तुम्हारे जैसे अफलातून लड़की को मैं कैसे झेलूंगा? उसकी बात पर वो धीमी सी हंसी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस रिश्ते को दिल से कबूल कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन उनके दरमियान के फासले कम हो रहे थे। ऑपरेशन काफी लंबा था। इस सुर्ख बत्ती में उन सब की जान को सुखा रखा था। दुपट्टे को नमाज के तरीके से लेते हुए वो दुआएं करने में मसरूफ थी। कहीं भी किसी की भी दुआ लग सकती थी, लेकिन जो बात उन्हें सुनने को मिली वो कोई भी दिमाग तस्लीम करने को राजी नहीं था। हमने ऑपरेशन से पहले ही मरीज को इस बारे में बता दिया था कि बचने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी वो ये ऑपरेशन करवाना चाहते थे। हम आपसे माजरत ख्वाह हैं कि हम आपके वालिद साहब को नहीं बचा पाए। आप कैसे ऐसी बात कर सकते हैं? मेरे वालिद मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो पागलों की तरह रोने लगी। यूसुफ ही था जो उसे खामोश करवा रहा था और उसे सहारा दे रहा था। सब उसे समझाने की कोशिश में लगे हुए थे। देखो, तुम्हारा ये रोना मुमताज चचा को तकलीफ दे सकता है, लेकिन जाने वाले पे ऐसा सब्र कैसे किया जाए? मुमताज साहब की मौत को काफी अरसा गुजर चुका था, लेकिन फिर भी दादी और शानज़े की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। यूसुफ ने इस कठिन हालात में उसकी मदद करने की बहुत कोशिश की थी। आज कुछ लोग कुरानी महफिल में जमा थे, तभी कुछ औरतें उन्हें देखकर कान में कहने लगी कि देखो तो सही, सारी जिंदगी मां को मुंह नहीं दिखाया, जब मौत का डर सताया तो अपनी बेटी इन्हीं के सर पर डाल दी। यूसुफ भला कितना ज़हीन और काबिल शख्स है,
जबकि मुझे तो इस लड़की पर किसी चीज का कोई खास साया लगता है। और गोरी की बेटी है, क्या पता मुसलमान भी हो या ना हो। आप लोगों को मेरे बारे में ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे भी यहाँ के लोग कुछ खास पसंद नहीं। मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो आपकी जबान खींच लूंगी। बाकी सब लोग उनकी बात ना सुन सके, तभी शांजे की बदतमीजी पर समझाने लगे। बहन कैसी बहू लाई हो, अपने मुंह से तलाक की बातें कर रही है। ताई तो खामोशी से अपनी बहू का मुंह देखती रही। उन्हें भी ये बात काफी बुरी लगी थी। यूसुफ आते साथ बगैर किसी को कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर ऊपर की जानिब ले गया। आखिर अचानक आपको क्या हो गया? मेरे इतने करीब क्यों आ रहे हैं? क्या ये भी आप लोगों की कोई नई चाल है? दोनों हाथ दीवार से लगाता वो उसके बेहद करीब हुआ था। यहां से भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। सुर्ख आंखों से उसे घूर कर देखती वो उसकी गिरफ्त में मचलती हुई बोली। दिल तेजी से धड़क रहा था। आज तक इस सारे मामले में बस इसी वजह से चुप था कि ये सब कुछ तुम्हारी रजामंदी के बगैर हुआ है। तुम्हें वक्त देना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे सब्र का बहुत इम्तिहान ले लिया। अब वही कर रहा हूं जो शादी की पहली रात कर देना चाहिए था मुझे। शोला बार निगाहों से देखता वो गिरफ्त मजबूत करता उसके कान के करीब सरगोशी करता हुआ मुस्कुराया। यहां से भागने की पूरी तैयारी कर रही थी। और तो और दादी से भी वो काफी बदतमीजी कर चुकी थी। मेरे बाप के मरते ही तुम लोगों ने मुझे लावारिस समझ लिया है। मुझे हाथ लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा। जब मौका मिलेगा मैं तुम्हारे सामने कहती हूं कि यहां से भाग जाऊंगी। उसकी पुरस्कार मुस्कुराहट पर वो खौफ से लरज उठी, मगर जल्द ही खुद को कंपोज करती बोली, ऐसी खुराफाती बातें सिर्फ तुम्हारे दिमाग ही सोच सकता है कि चच्चा के जाने के बाद हम तुम पर जुल्म करना शुरू कर देंगे। फिलहाल गौर करो कि तुम इस वक्त मेरे हिसार में हो, मेरी दस्तरस में हो, मेरी मलकियत हो, मेरी बीवी हो। मुझे कब तुम्हारे साथ क्या करना है ये बताना पड़ेगा मुझे। कम से कम तुम इन रिश्तों का इस वजह से लिहाज और एहतराम कर सकती हो कि ये रिश्ते मुझसे मुंसलिक हैं। हम दोनों के दरमियान मियाँ बीवी का रिश्ता बन चुका है, फिर चाहे तो उसको मजाक समझो या संजीदगी से लो। उसके दोनों हाथ कमर पर ले जाते ही उसके दोनों हाथ वो एक हाथ में लेता, उसके चेहरे पर आए बाल कान के पीछे करता हुआ सर्द लहजे में बोला। यूसुफ की मां को तो सुबह शाम टेंशन लगी रहती थी, क्योंकि बहू और बेटे के कमरे से लड़ाइयों की आवाजें जो इतनी आती थीं। उन्हें लगता था कि जल्दबाजी में शमशाद बेगम ने यह रिश्ता करने में बड़ी जल्दी कर दी। तुम रिश्तों का लिहाज भूलती जा रही हो। किस तरह सबके सामने इस रिश्ते को खत्म करने की बात कर रही थी। क्या हम दोनों के दरमियान ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन हुआ था कि मैं तुम्हें निकाह के बाद छोड़ दूंगा? जो आज हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो अब होगा वो बहुत अच्छा होगा। कुछ देर पहले हुई बातचीत को सोचता वो मुंह के जाविये बिगाड़ता बोल रहा था। सब लोगों की नजरों का निशाना वो बना हुआ था। हर कोई उससे इस रिश्ते के मुतल्लिक पूछ रहा था। आज उसकी मर्दानगी, उसकी इज्जत, उसके किरदार पर बात उठी थी, और वो नहीं चाहता था कि आगे कोई और इस बारे में मजाक रात करे। देखो, हम दोनों की उम्र में और सोच में बहुत फर्क है। तुम जानते हो बाबा की बीमारी की वजह से मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहती थी। ये शादी हम दोनों में नहीं चल सकती। मुझे तलाक दे दो और मेरी जान छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ मजीद ख्वार नहीं हो सकती। मैं यहाँ के कल्चर के मुताबिक खुद को एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। उसकी गिरफ्त से अपनी कलाइयाँ टूटती हुई महसूस हो रही थीं। दर्द से कराहती वो बेबसी से बोली थी। अपनी बेकदरी पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसका अपना लहजा नर्म हुआ था। हमारी शादी किसी भी हालात में हुई हो, तुम्हें तब इनकार कर देना चाहिए था। तुम्हारे सर पर बंदूक नहीं रखी गई थी, तो क्यों हर बार मैं ही समझूं? हमारे खानदान में तलाक नहीं दी जाती, चाहे बीवी पसंद हो या ना हो, निबाह करना पड़ता है।
और मुझे तुम नापसंद नहीं हो, फिर क्यों तलाक दूं तुम्हें, जबकि मुझे तुम्हारी तलब है जो आज मैं पूरी करूंगा। इस रिश्ते से निकलने के बारे में अब तुम सोचोगी भी नहीं। लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे होंगे। शांजे की आंखों से बहते अश्क देखता वो अपनी गिरफ्त ढीली करता मखमूर लहजे में कहता। उसकी नम आंखों पर लब रख गया। वो जो अपने दिल में यूसुफ को मुकाम देने जा रही थी, कुछ लम्ब जुमलों ने उसके अंदर सब रेजा रेजा कर दिया। उसे यूसुफ के गुस्से से खौफ आने लगा था। इतने अरसे बाद उसने ये लहजा देखा था। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, और आप जानते हैं आपने कहा था कि रिश्ता मेरी मर्जी से होगा। यूसुफ के लम्स पर वो सटपटाई थी, क्योंकि आज उसकी गिरफ्त में एक खास हक था। मैं अपना हक मांग रहा हूं तुमसे, जो तुमने मुझे 3 माह पहले नहीं दिया था, और आज तक सिर्फ चचा की मौत के सदमे के सबब मैं खामोश रहा। लेकिन अब तुम्हें बहुत वक्त दे दिया। लोगों के सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रही हो। उसको करीब आते देखकर वो काफी खौफजदा हो गई। मैंने उनके सामने तुम्हारी इज्जत का कोई फालूदा नहीं बनाया, बल्कि वो लोग कह रही थी कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। तुम्हें मुझसे बेहतर लड़की मिल सकती थी। मेरे बाप ने तुम्हारे सर पर मुझे थोप दिया, और मेरी मां के बारे में बातें कर रही थी। वो बताते साथ जोर जोर से रोने लगी। तुमने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया? मैं वहीं उनसे सवाल कर लेता। क्या बताती? तुम मेरी कोई बात सुनने को लिए तैयार नहीं थे, और खींचते हुए मुझे यहां तक ले आए। सॉरी। वो ये जवाब देकर फिर नीचे चला गया था और अपनी मां को सारी हकीकत बताने लगा, ताकि सास और बहू में कोई इख्तलाफ ना हो। धीरे धीरे उसे एहसास जरूर हुआ था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। यूसुफ के जज्बात शांजे के लिए बदलने लगे थे। दोनों एक दूसरे को आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे थे, एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे थे। ये कोशिश 100% ना सही, लेकिन बहुत हद तक कामयाब हो गई थी। कभी कभार हम अनचाहे रिश्तों में जुट जाते हैं, या हमारी सोच के बरक्स अल्लाह ने हमारे लिए कुछ सोच कर रखा होता है। लेकिन जब हम उस रिश्ते को अल्लाह की मर्जी समझकर अपनाते हैं, तो उसमें ढलने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे मामलात हमारे हक में होते चले जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।